Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajata. Student, today I am taking the introduction section of the chapter number 11, class 8 mathematics NCERT. The name of the chapter mensuration. Introduction part 2. In the previous video, we also defined the some terms related to cube, related to cuboid, related to cylinder, related to hollow cylinder, related to cone, related to sphere, related to circle. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो या सर्कल हो, तो ये किन से बनते हैं? ये सिंपल फर्स्ट वन, ठीक है, मैं आपको ज्योमेट्रिकल शेप बता रहा हूँ स्टूडेंट। स्क्वायर, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर? लेट वी कंसिडर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर। इसको स्क्वायर कब बोलेंगे? इसकी प्रॉपर्टी सुनिए ध्यान से। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, सेकेंड वन, diagonals are equal. Diagonals, that means AC equal to BD. First property student, all sides are equal. Second property, all diagonals are equal. Third property, all angles will be equal of 90 degree. The shape are known as square. ओके स्टूडेंट, ठीक है। स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा शेप है। फर्स्ट वन आपने ये तो सुना होगा, ट्राइंगल। ट्राइंगल दैट मीन्स थ्री साइड। क्वाड्रिलेटर दैट मीन्स फोर साइड। तो अगर जो हम क्वाड्रिलेटर की बात करें तो हमको क्वाड्रिलेटर में सबसे पहले समझना है स्क्वायर। देन आफ्टर सेकेंड वन, रेक्टेंगल। व्हाट इज द मीन ऑफ रेक्टेंगल? स्टूडेंट, रेक्टेंगल दैट मीन्स example, for example, whiteboard. Okay student, board is the example of the rectangle. Let we consider A B C D. First one student, take A B C D is a example of rectangle. What is the mean of the rectangle? Opposite sides are equal. Here in the case of the square, all sides are equal, but in the case of rectangle only opposite sides are equal. Opposite मतलब आमने सामने। AB equal to DC and AD equal to BC। क्या बोला स्टूडेंट? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, opposite sides are equal and parallel to each other. What is the mean of the parallel? ठीक है, आपने सुना होगा पैरेलल क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, ये जो बोर्ड का अपर साइड है और ये लोअर साइड है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइन which cannot be intersect to each other are known as the parallel। तो हमने अभी हाल बोला, AB इक्वल टू DC, AD equal to BC and also opposite sides are parallel। Parallel represented by the two, ठीक है, straight line, two straight lines। parallel AB parallel to DC and AD parallel to BC। बिल्कुल ठीक है, ऐसा यहाँ पर भी होगा। ठीक है, इन द केस ऑफ द स्क्वायर all sides are equal and opposite sides are parallel. That means AD parallel to BC and AB parallel to DC। Okay student, हमने क्या बोला है? In the case of the square all sides are equal, opposite sides are parallel, diagonals are equal
एंड ऑल एंगल्स विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री। बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और यहाँ पर हमने वर्ड यूज करा है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, डायगोनल। व्हाट इज द मीन ऑफ द डायगोनल? दैट मीन्स अ क्रॉस लाइन। स्टूडेंट, डायगोनल्स ए बी will be equal of DC and all angles, angle A will be equal of angle B equal to angle C, and angle D will be equal of 90 degree. What is the mean of the 90 degree? That means the right angle. याद रखिएगा, मैं हर एक छोटी बात बताऊंगा। राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री। आप मैथमेटिक्स में जहां भी 90 डिग्री का यूज करते हैं उसको आप बोलिए राइट एंगल। फॉर एग्जांपल अ ट्राइंगल विच कंसिस्ट द 90 डिग्री, तो उस ट्राइंगल का नाम भी होगा राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए फिर से बात करते हैं स्क्वायर, फिर से बात करते हैं रेक्टेंगल। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल? Square and rectangle, all sides are equal, opposite sides are equal. Okay students, so we can say by use of the first and second, all squares, ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूं मैं यहाँ पर, all squares is rectangle, all squares is rectangle, but all rectangles not square. ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर क्या बोला है? ठीक है, सभी टीचर्स स्टूडेंट थे, बट सभी स्टूडेंट टीचर्स नहीं बन सकते। बिल्कुल सिमिलर, ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगल, बट दैट इज नॉट कि रेक्टेंगल स्क्वायर हो। याद रहेगा, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट? रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमने स्क्वायर में देखा है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ सभी साइड बराबर है, तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि अपोजिट साइड्स भी बराबर होगी। मतलब स्क्वायर जो है, स्क्वायर इज द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगल, but we can't say कि rectangle is the example of square. Okay student, first two definition related to square and related to rectangle. Now we introduce third point, that means a triangle. Student, in the case of the triangle, ध्यान सुनना, triangle and what is the mean of the quadrilateral? Quadrilateral is a shape which consists the four side. क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जिसमें 4 साइड होगी, और ट्राइंगल क्या होगा? जिसमें 3 साइड होगी। तो सर यहाँ पर 3 कोने भी मिल रहे हैं। याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं 3 इंपॉर्टेंट बात। ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट वन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेकेंड वन इक्वेटोरियल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, एंड थर्ड वन जो हमको यूज नहीं करना है, जो हमको रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल हो गए हैं? 3 टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल आर देयर। ऐसे तो और भी ट्राइंगल होते हैं, बट अभी हमको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 8th, ठीक है, वी गेटिंग द 3 टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल। फर्स्ट वन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेकेंड वन इक्वेटोरियल ट्राइंगल, एंड थर्ड वन राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन? 3.A, that means a part of 3. What is the mean of the isosceles triangle? Isosceles triangle is the example of the triangle in which any 2 sides are equal. मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि बेस को छोड़ के दोनों साइड इक्वल होती है। 99.99% बुक में जितने भी डायग्राम है वो सब इस फॉर्म में हैं। किस फॉर्म में स्टूडेंट? इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC। तो बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये दोनों साइड ही इक्वल हो सकती है, बट दैट इज रॉन्ग स्टूडेंट। इन द केस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल।
These type of triangle are known as the isosceles triangle. Second one, student. Second point, that means the equatorial triangle. What is the meaning of the equatorial triangle? Student, a triangle which consists the all equal sides. The all sides of the triangle are equal. all sides are triangle are equal. मैं बेसिक पूरा इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन में अगर जो पिछली क्लास का यूज हुआ तो हम सिर्फ माइंड में ये नहीं बोले कि ये 8 तक का पार्ट है, हमको आना भी चाहिए. ओके स्टूडेंट, इक्वेटोरियल ट्राइंगल दैट मीन्स अ एग्जांपल ऑफ ट्राइंगल इन which all sides are equal. Okay student, all sides are equal and all angles are equal. That means angle A will be equal of angle B will be equal of angle C. Directly and indirectly we can say the all sides and all angles are equal. These type of triangle are known as equatorial triangle. Now we are taking the last point related to triangle, right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल. स्टूडेंट आप बिल्कुल रियल लाइफ में जाइए. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी अननोन प्लेस पे घूम रहे हैं और आपने पूछा, ठीक है, कि मकान नंबर 14 किधर होगा. ठीक है, तो वो बोलते हैं सर राइट जाइए. तो आप राइट कैसे जाते हैं, ऐसे वैसे जाते हैं या बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं? सर बिल्कुल करेक्ट, हम बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं. ठीक है, मतलब रोड जो रहता है वो 90 डिग्री एंगल के साथ मूवमेंट्स करता है. स्टूडेंट वी नो दैट वेरी वेल. द ज्योमेट्रिकल पोजीशन, ये आपने डायग्राम देखा होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. यस और नो स्टूडेंट? आपने एसएसटी में हर बार जब भी आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो ये डायग्राम देखा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. तो यहाँ पर इन सभी के बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. दैट मीन्स अ ट्राइंगल which consist one angle will be equal of 90 degree. These type of the triangle are known as right angle triangle. Okay student, what is the meaning of the right angle triangle student? A triangle which consists at least one angle will be equal of 90 degree. यहाँ पर मैंने बोला है एट लिस्ट, तो इसका दूसरा मतलब मत निकालना. सर एट लिस्ट का मतलब यहाँ पर होगा सिर्फ एक ही एंगल 90 हो सकता है. कभी भी दुनिया में कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं होता जिसमें दो एंगल 90 हो. याद रहेगा. ठीक है, दैट मीन्स अ ट्राइंगल विच कंसिस्ट वन एंगल, सॉरी एट लिस्ट हटा दीजिए यहाँ से, वन एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री. दिस टाइप ऑफ द ट्राइंगल आर नोन एज द राइट एंगल ट्राइंगल. अब यहाँ पर भी एक चीज समझते हैं, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल लॉन्गेस्ट साइड, किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हमेशा 90 के सामने होती है एंड इट इज डिफाइंड बाय द हाइपोटेनियस. फिर से बोले मेरे साथ, हाइपोटेनियस. ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8, हाइपोटेनियस. नहीं तो आप जल्दी में इसको कुछ और नाम बोल देंगे. ठीक है, हाइपोटेनियस. द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल are known as hypotenuse. The front side of 90 degree are known as hypotenuse. स्टूडेंट अभी तक हमने क्या सीखा है? फर्स्ट वन स्क्वायर, सेकेंड वन रेक्टेंगल, थर्ड वन ट्राइंगल, अंडर द ट्राइंगल isosceles triangle, equilateral triangle and right angle triangle. Now student, now we introduce the next and most important point, parallelogram. Okay student, parallelogram. Also parallelogram written in the form two lines and GM. अगर जो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख रहे हैं तो ये 110% बिल्कुल करेक्ट होगा. टेक्निकल लैंग्वेज. ओके स्टूडेंट, टू लाइन्स एंड ग्राम रिप्रेजेंट द पैरेललोग्राम. स्टूडेंट आपने फेस्टिवल के दौरान एक स्वीट खाई होगी, कौन सी? काजू कतली. ठीक है, तो इसका शेप अगर जो हमने कभी देखा है तो ये पर्टिकुलर इस शेप में, ये इसका स्टैंडर्ड शेप है. ओके स्टूडेंट,
तो अगर जो हम इस शेप को डिस्कशन करें या कुछ नाम देने की कोशिश करें इन द केस ऑफ द ज्योमेट्री, तो हम उसका नाम देंगे पैरेललोग्राम। समझिए ये क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर। अगर जो हमने स्क्वायर को दोनों तरफ से पकड़ के खींचा तो वो क्या बन गया, रेक्टेंगल। अब उसके ऊपर आप चढ़ जाओ, उसके ऊपर आप बैठ जाओ। अगर जो आप रेक्टेंगल के ऊपर बैठ जाओगे, आप किसी बॉक्स के ऊपर बैठ जाओगे तो बॉक्स कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड। ओके स्टूडेंट, आपको समझ आया। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर। और स्क्वायर को जब हमने खींचा तो हमने क्या फाइंड आउट करा, रेक्टेंगल। और जैसे ही हमने रेक्टेंगल के ऊपर बैठ गए तो वो क्या बन गया स्टूडेंट, पैरेललोग्राम। लेट वी कंसीडर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी इज एजेस पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसकी भी प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट। इन द केस ऑफ द पैरेललोग्राम, फर्स्ट वन, जैसे हमने यहाँ पर डेफिनेशन की बात करी है, इन द केस ऑफ द स्क्वायर all sides are equal. In the case of the rectangle, opposite sides are equal. But in the case of parallelogram, opposite sides are equal and parallel to each other. बिल्कुल रेक्टेंगल की डेफिनेशन है स्टूडेंट, opposite sides are equal and parallel to each other. That means we can say AB will be equal of DC. AB equal to DC and AD equal to BC. First and most important point, opposite sides are equal, and second, also parallel to each other. That means we can say AB parallel to DC and AD parallel to BC. Okay student, opposite sides are equal and parallel to each other, but something different from the rectangle. Rectangle में हमने क्या बोला था, diagonals are equal, and here diagonals, that means AC not equal, AC not equal, equal ऐसा होता है, क्रॉस कर दीजिए, not equal AC not equal to BD. ओके स्टूडेंट। एंड थर्ड वन, अगर जब इसके बाद एक और चीज देखिए स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर बोलेंगे एंगल्स नॉट इक्वल टू 90। पर यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, सेम साइड एंगल, एंड हियर सेम साइड एंगल। ओके स्टूडेंट, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सर आप बोलेंगे ऊपर से देखें तो ये दोनों सेम है, तो आप ऊपर से देखेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर जो आप नीचे से देखने की कोशिश कर रहे हो तो एंगल डी प्लस सी, एंगल डी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, क्या डिफरेंट है विद द कंपैरिजन ऑफ द रेक्टेंगल। इन द केस ऑफ द रेक्टेंगल हमने क्या बात बोली है, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये दोनों में सिमिलर है। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, हियर ऑल एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, तो क्या है सर, यहाँ पर एक ही साइड पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिकली समझते हैं। सर हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है, उसको हमने बोला स्क्वायर, जैसे स्क्वायर को खींचा तो वो हो गया क्या, रेक्टेंगल। उसके ऊपर बैठ गए तो वो क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, जब आप रेक्टेंगल के ऊपर बैठे हैं तो पैरेललोग्राम बना है, तो स्क्वायर बॉक्स के ऊपर बैठेंगे तो वो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये एक स्क्वायर बॉक्स है जिसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है। फिर से देखते हैं, ठीक है, एक फेयर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। सपोज ए बी सी डी and all sides are equal, that means a square, all sides are equal, that means a square। बट जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा बेंड कर दिया तो हम बोलेंगे रोम्बस। नया शेप मुझे क्या मिला स्टूडेंट, रोम्बस। ओके स्टूडेंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 5, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्क्वायर। पॉइंट नंबर 4, बेस्ड ऑन द रेक्टेंगल। स्टूडेंट, रोम्बस, what is the property of the rhombus? First one, opposite side, sorry, all side AB
equal to BC equal to CD equal to DA. All sides are equal. First one, all sides are equal. तो सर डिफरेंट क्या है? देखिए, इन द केस ऑफ द स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल, बट इन द केस ऑफ द रोम्बस डायगोनल्स AC नॉट इक्वल टू BD. कंपेयर करते हैं, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. यहाँ पर क्या बोला है? ऑल एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री, और यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, ऑल एंगल्स नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सेम प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पैरेललोग्राम. बस पैरेललोग्राम और इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? पैरेललोग्राम और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कहीं ना कहीं रोम्बस को मैं क्या बोल सकता हूँ? पैरेललोग्राम. दैट मीन्स अ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम, but parallelogram is not example of rhombus. याद रहेगा स्टूडेंट, ठीक है. जैसा हमने वहां पर बोला है, क्या बोला वहां पर? ठीक है, स्क्वायर इज द एग्जाम्पल ऑफ द रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर. यहाँ पर बिल्कुल ठीक ऐसी बात बोली. रोम्बस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम, but parallelogram is not an example of rhombus. I hope student you getting the 110% introduction part 2 related to chapter number 11 of mensuration. In the next video we will see about the formulas related to mensuration. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subjects from our channel. Thank you so much.